Hi friends, welcome to my video lecture. In this video lecture, I am going to talk on multimedia hardware. That means what are the hardware components useful for the multimedia applications. Before going to start my session, I just want to give the simple definition of multimedia. So, multimedia is the presentation of information. Multimedia is the presentation of information using the combination of multimedia components. So, multimedia is the presentation of information. That means by using the concept of multimedia, we are able to present our information in a such a way so that it's make people to more attractive or interactive in nature. Then how we are going to do this? By using the multimedia components. Dear friends, already I had discussed what are the multimedia components in the last video. So, the same components I am using, and I try to explain you here also. By using these 5 basic components of multimedia, we are able to make our information more attractive or interactive in nature, and that is the concept of the multimedia. So, in simply we can say that multimedia is the presentation of information with the combination of multimedia components which make the information more attractive or interactive in nature. So, this is the simple definition of the multimedia. Dear friends, before going to touch the main topic of today's session, I just want to tell you one thing. This video lecture I am preparing based on SBTE syllabus, that is State Board of Technical Education for diploma course. So, as per the syllabus of SBTE for diploma course, I am covering the contents here. I am covering the syllabus, and I am just make you easy to understand under the multimedia hardware. So, introduction part of the multimedia hardware. जैसे कि हम लोग अभी देखते हैं कि हर एक दिन अगर हम लोग देखें तो हमारा टेक्नोलॉजी क्या है, ग्रोथ हो रहा है, बढ़ रहा है, गोइंग डे बाय डे, एवरी डे इट्स इंक्रीजिंग, गोइंग एडवांस लेवल, एंड दैट इज द रीजन, वही एक कारण है, दैट इज द रीजन नाउ द कंप्यूटर जो हमारे पास आ रहे हैं, दैट कंप्यूटर इज वेल इक्विप्ड इन नेचर. दैट मीन्स कहने का मेरा मतलब यह है कि जो हमारा टेक्नोलॉजी हर एक दिन बढ़ता जा रहा है, सो हमारे पास जो अभी जो नए सिस्टम, जो भी हम लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं और हम लोग लेते हैं, या लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, दोनों ही अपने आप में काफ़ी इक्विप्ड होते हैं, यानी कि वो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को हैंडल कर सकते हैं. जो बेसिक जो भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है हार्डवेयर का, वो सारा ऑलरेडी हमारे सिस्टम में अवेलेबल होता है. मैं यही कहना चाह रहा था यहाँ पर. सो नेक्स्ट वी हैव लिस्ट ऑफ मल्टीमीडिया हार्डवेयर कैटेगरीज. दैट मीन्स these are the things we need for the multimedia application. So, as I told you, nowadays the computer is coming with well equipped with the hardware components, components required to develop and view multimedia application. Means for the multimedia application, what are the basic hardware components? It is already there in the computer. Now we have to see the list of multimedia हार्डवेयर कैटेगरीज. दैट मीन्स मल्टीमीडिया हार्डवेयर पार्ट कंपोनेंट्स को हम एक कैटेगरी में, कुछ कैटेगरी में उसको हम डिवाइड करने का कोशिश किए आपके लिए, टू इसको सिंपल करके हम आपको बताना चाहते हैं. तो जैसे हमने पहला पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे, ये पहला पॉइंट में कह रहा है
capture devices. That means inside the capture device categories we have video camera, video recorder, audio microphone, keyboard, mics, graphic tablets, 3D input device. There are many things comes under the capture device. That means inside the capture device category we have all recording parts, mics, keyboard, tablets, 3D input device. So these are the hardware components need for the multimedia application. Next we have a storage device. That means once we completed our multimedia application, then definitely we need to save our file somewhere else. For that we need a storage device. For that we have hard disk, CD-ROM, pen drive, and many external hard disk is also there. So as I told you, nowadays the computer is coming with well equipped in nature. That means nowadays the the size of the hard disk will be 1 terabyte, 2 terabyte, like this it's coming. So no need to be worried for that. Next we have a communication network. Then definitely we need a communication network. Now the computer is coming with the Wi-Fi. Now the desktop is coming with Ethernet. That means the already having that, no need to be again install and or to have to do the any Ethernet external. So it's already installed there, already we have. So no need to be worried for that. We have a internet and internet facility inside the system. All the cable and all the slots are given here. So it's a well equipped in the nature. Then computer system, मल्टीमीडिया डेस्कटॉप मशीन, कंप्यूटर सिस्टम. दैट मीन्स कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि हमें मल्टीमीडिया पर काम करने के लिए जो सिस्टम हमें चाहिए वो चाहे उस टाइप का सिस्टम हमारे पास अभी रहता है. ऐसे कहने का मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात हम कर रहे हैं. यहाँ पर अभी i7 आ रहा है, i5 आ रहा है. सो बहुत तरह का हायर कॉन्फ़िगरेशन भी सिस्टम का आ रहा है जो हमारा मल्टीमीडिया को जो बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए वो मेरे ऑलरेडी हमें मिल जाता है. सॉरी. नेक्स्ट वी हैव डिस्प्ले device. Inside the display device we have all this, it's already there. Color printer, high resolution monitor is coming along with the CPU. Then HD TV, SVGA, this all are the video display interface. This is called video display interface is there, so already is there. So these are the basic category and which having list of multimedia hardwares. I hope it is clear for you. मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल वे में करके यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया कि इस कैटेगरीज के दौरान ही हमारा जितना भी मल्टीमीडिया हार्डवेयर है वो पाया जाता है. सो वी हैव अ 5 बेसिक कैटेगरीज. इनसाइड दिस 5 बेसिक कैटेगरीज ऑल मल्टीमीडिया नीडेड हार्डवेयर आर अवेलेबल. नाउ लेट्स सी आवर मेन टॉपिक दैट इज कॉल्ड साउंड कार्ड एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बी सी द वीडियो कार्ड. सो एज पर द सिलेबस ऑफ द SBT we have to cover sound card and video card. So I am just covering these two topic today. So sound card क्या होता है वो समझना है हमें. So sound card is an expansion or inbuilt component used in computer to receive and send audio. Just kindly please have a note of this. So sound card is an expansion or built-in component. That means it's external or internal both. So sound card again classified into two types. It's one is called external and one other is called internal. Internal means built in or external means expansion card. So sound card is an expansion or built in component used in computer to receive and send audio. So for our purpose we are going to be use the sound card to receive and send audio. So the sound card is used to receive and send the audio. So this is the basic definition of the sound card. So sound card again, it's used for producing sound on a computer that can be heard through the speaker or headphone. Other definition of the sound card. Next, other point we have in sound card, the input device attached to the receive audio data is usually a microphone. Please give your concentration here.
Input device attached to the receive audio data, usually a microphone, while the device used to output audio data is generally speaker and headphones. Dear friends, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि इनपुट डिवाइस जैसे हमारा माइक्रोफोन है, क्या है, ये इनपुट डिवाइस है, इसको हम लोग रिसीव ऑडियो जैक के थ्रू इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। एंड आउटपुट डिवाइस हमारा क्या है, ये स्पीकर हमारा और हेडफोन क्या है, दैट इज द आउटपुट डिवाइस विच इज कनेक्टेड विद द आउटपुट ऑडियो जैक और डेटा विद द साउंड कार्ड। सो यही हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि इनपुट डिवाइस जो हमारा है जैसे माइक्रोफोन है, उसको हम रिसीव ऑडियो डेटा जैक के थ्रू कनेक्ट करते हैं जो हमारे साउंड कार्ड में दिया रहता है, और स्पीकर और हेडफोन को हम आउटपुट ऑडियो डेटा जैक के थ्रू कनेक्ट करते हैं जो हमारा साउंड कार्ड में दिया रहता है। यही यहाँ पर हम बताने का कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, द साउंड कार्ड कन्वर्ट द एनालॉग ऑडियो डेटा फ्रॉम द माइक्रोफोन इनटू डिजिटल डेटा। साउंड कार्ड क्या करता है, एक कन्वर्ट करता है, क्या चीज को कन्वर्ट करता है, एनालॉग ऑडियो डेटा को हम लोग डिजिटल में वो कन्वर्ट करके देता है बाय यूजिंग द ऑडियो सॉफ्टवेयर। सो दीज आर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द साउंड कार्ड। साउंड कार्ड को हम लोग और अदर नाम से भी जानते हैं, जिसका हमारे पास में साउंड कार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड ऑडियो कार्ड, ऑडियो एडेप्टर, sound adapter. So these are the various names of the sound card. So sound card is called audio card, audio adapter or sound adapter. So once we can ask all these names, so no need to be confused, you just try to understand that all having the same name, that is called sound card. See here, these are the, I have just given those two images here, I have given this two images here. So these are the two sound card here image, one is internal and another one is external. These are the two sound card here, one is internal and another one is external. So these are the port, these are the port through which we are able to be attached, through which we are able to be attached or connect our input or output device. Let's see, we have to talk on the ports of the connection of the sound card. Now sound card connection, inside the connection of the sound card we have to see color coding, we have to see color coding. It's clearly mentioned here, this the picture is an example of the sound card audio ports or audio jack on the back of the computer. That means this picture will be available to back of your computer and the same color coding will be displayed there also, and each color coding having some meaning. So let's see one by one. So digital odd, digital odd क्या होता है, digital odd is yellow in color. So I am talking for this audio jack. This audio jack allows to connect the loudspeaker, allows to connect the loudspeaker for the surrounding sound. So this is yellow in color and the name of this jack is called digital out. Next we have sound in or line in. Sound in and line in are in blue in color, which is used for the connection of external audio sources. That means this jack is useful for the connection of external audio sources such as tape recorder, record player or CD player. That means by the help of this audio jack we are able to be connect the external audio resource. So इसका नाम क्या दिया गया है, sound in और line in.
यानी कि इस ऑडियो जैक के थ्रू हम लोग एक्सटर्नल ऑडियो सोर्स जो हमारा है उसको हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे हमारे पास में हो गया सीडी प्लेयर हो गया, रिकॉर्डर प्लेयर हो गया, समझ रहे हैं, तो इसको हम लोग इसके साथ जोड़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव माइक्रोफोन और माइक विच इज इन पिंक, which is in pink. So this pink audio jack is used for the connection of microphone or headphone. Normally it is दोनों साइड में दिया रहता है। अगर हम अपने कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर का दोनों साइड में दिया रहता है, फ्रंट में भी दिया रहता है, बैक में भी दिया रहता है ये जैक। सो हम लोग माइक्रोफोन इजिली हम लोग कनेक्ट करके इस कंप्यूटर के साथ हम लोग कोई भी वीडियो को हम लोग सुन सकते हैं, और कोई भी वीडियो को हम लोग उसकी मतलब जो भी ऑडियो है उसको हम लोग अच्छे से हम लोग सुन सकते हैं। सो दिस इज पिंक इन कलर, यूज फॉर द कनेक्शन ऑफ माइक्रोफोन और हेडफोन। नेक्स्ट वी हैव साउंड आउट और लाइन आउट विच इज ग्रीन इन कलर। Dear friends, same color I have given here also. See, same color I have given. What is the color it displayed here? The same color I have given also here. So it's make you easy to be relate and understand the points. So sound out or line out is green in color. The primary role of the sound out or line out is to connect for your speaker and headphone। यानी कि अपने स्पीकर को, जो हम लोग कंप्यूटर में जो स्पीकर को अटैच करके हम लोग कुछ बातों को सुनते हैं या उसकी आवाज़ को हम लोग कनेक्ट करके हम लोग सुनना चाहते हैं, उसके लिए हमारा क्या है, ये हमारा साउंड आउट और लाइन आउट हमारा यहाँ पर काम करता है, जिसकी कलर कोडिंग हमारे लिए ग्रीन दिया गया है। I hope it is clear for you now. Next we have fire wire. Fire wire क्या कहता है, जो इसमें दर्शाया नहीं गया है। So used for high quality sound card and digital video camera। समझ रहे हैं? अभी आप समझ लीजिए, बस याद कर लीजिए कि फायर वायर जो होता है is used for high quality sound card for digital video camera। And the last one we have a MIDI, और उसको हम लोग जॉयस्टिक भी बोलते हैं। दिस MIDI में कितने टोटल पिन होते हैं, 15 पिन होता है, जो येलो कलर का होता है। यहाँ भी मैंने येलो कलर आपको दिखाने का कोशिश किया है। ये क्या करता है, क्या चीज के लिए यूज होता है, यूज विथ अर्लियर साउंड कार्ड टू कनेक्ट MIDI कीबोर्ड और जॉयस्टिक। पहले इस तरह का हमारे लिए आता था, जिसको हम लोग अपने कीबोर्ड और जॉयस्टिक को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते थे। डियर फ्रेंड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIDI? सो M स्टैंड फॉर म्यूजिकल, I स्टैंड फॉर इंस्ट्रूमेंट, D स्टैंड फॉर डिजिटल, I स्टैंड फॉर अगेन I स्टैंड फॉर इंटरफेस। That means musical, instrument, digital, interface. That is the full form of MIDI. Again I am repeating, musical, instrument, digital, interface. So this is the full form of the MIDI. I hope it is clear for you. So ये हमारे लिए क्या है, कनेक्शन है, जो हमारा साउंड कार्ड के दिया रहता है साउंड कार्ड के, और ये साउंड कार्ड हमारा हर सिस्टम के पीछे में लगा रहता है, जिसमें कलर कोडिंग भी होते हैं। हर कलर कोडिंग का अपना अपना मीनिंग होता है, जो एक एक करके हमने यहाँ पर आपको समझाने का कोशिश किया है। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू एंड इट्स मेक इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। नाउ वी हैव टू सी द टाइप्स ऑफ साउंड कार्ड। साउंड कार्ड कितने तरह के होते हैं वो हम लोग अभी देखने जाएंगे। तो साउंड कार्ड हमारे पास देखेंगे हम लोग कितने तरह के होते हैं। साउंड कार्ड 3 तरह के हमारे पास साउंड कार्ड होते हैं।
सो पहला हमारे पास है वो क्या है, उसका नाम इंटीग्रेटेड साउंड कार्ड. दिस इज द एग्जांपल फॉर द इंटीग्रेटेड साउंड कार्ड. सो इंटीग्रेटेड साउंड कार्ड इज अ कार्ड दैट इज built into the motherboard of the computer. बात को समझिएगा डियर फ्रेंड्स, यहां पर इंटीग्रेटेड जो होता है क्या, मदरबोर्ड के साथ बिल्ट इन होता है, यानी कि उसके अंदर में होते सर्किट की तरह होता है. समझ रहे हैं? सो इंटीग्रेटेड साउंड कार्ड इज अ कार्ड दैट इज बिल्ट इनटू द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर. सो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड साउंड कार्ड. सो एग्जांपल के थ्रू यहां पर हमने दिखाने का कोशिश किया है, ये हमारा क्या है, इंटीग्रेटेड है, जो हमारा ऑलरेडी मदरबोर्ड के साथ आया है, लग करके इंटीग्रेट होकर के आया है. सो अभी जितने भी हमारे पास मदरबोर्ड आते हैं वो सब हमारा इंटीग्रेटेड साउंड कार्ड उसमें लगा रहता है. नेक्स्ट वी हैव इंटरनल. नेक्स्ट वी हैव इंटरनल साउंड कार्ड. सो दिस इज द एग्जांपल फॉर द internal sound card. This, see here, this is the example for the internal sound card. This is called integrated. Now see, what is the difference between internal and integrated? Integrated means built in with the motherboard, or internal means, see here, the card are sold in form of separate card that is installed on the motherboard in the system unit. That means we have to install on the motherboard. Slot is given there, we have to install on the motherboard. That is called internal. So dear friends, please try to understand, please try to differentiate both internal or integrated. Integrated means inside the motherboard, that is with the circuit, just like a circuit. When you see the motherboard, there are a lot of circuits are there. So integrated means inside, built in, and internal means we are going to be installed on the motherboard. We are going to be installed. The word I am using here, install, that means we are going to be placed on the motherboard. And integrate this the built in means it's coming along with the motherboard. This means coming along with the motherboard. Built in, it's having inside the motherboard. So that is the difference. Next we have, next this the point of the internal is saying that internal sound card helps to enhancing the volume and sound quality of the inbuilt speaker of your PC or laptop. So this is the advantage of using the internal sound card, which is going to be enhance the volume and sound quality of the inbuilt speaker on your PC or laptop. Next we have external sound card. So external sound card is placed outside the PC system, that means outside. This is the example of the external sound card, we are placing outside. So connecting an external sound card is often carried out with the using the USB. I hope everyone know the full form of USB, that is universal serial bus. Universal serial bus. So external sound card is box that you connect to computer to add audio port. So इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ को हम लोग कनेक्ट करते हैं, ऑडियो पोर्ट को हम लोग कनेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल. सो ये सेपरेट बॉक्स होता है जो हमारा मतलब सिस्टम से अलग होती है, लेकिन एक USB के थ्रू इसको हम लोग सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं, बाकी जितने भी यहाँ पर पोर्ट्स हैं हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं. सो दीज आर द 3 बेसिक टाइप्स ऑफ sound card. Now we have uses of sound cards, where we are using the concept of sound cards. So first in the field of gaming, next listening music, it's well familiar, no need to be explained more, you already know that. Watching movie, for that also we are needing sound card. Audio or video conferencing, all the simple points are given here. Creating MIDI, playing for that, education software, business presentation,
record detection and voice recognition. So these are the area where we are going to be use the concept of sound card. I hope it is clear for you now. Now we have to see the next topic of our video lecture, video card. We have to see the video card. So video card is also called the graphics card. वीडियो कार्ड को हम लोग दूसरा नाम क्या दिए, ग्राफिक्स कार्ड भी हम लोग दिए हैं। वीडियो कार्ड जो होता है 4 चीजों को इंक्लूड करके, मतलब ये इंक्लूड करता है। वीडियो कार्ड्स इंक्लूड्स प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, कूलिंग मैकेनिज्म, कनेक्शन टू डिस्प्ले डिवाइस। So dear friends, again I am trying to explain the video card in a simple way. So video card का दूसरा नाम हमारा ग्राफिक्स कार्ड भी है। वीडियो कार्ड जो हमारा मदरबोर्ड के साथ इंटरनली भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है, जो हमारा मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होकर आता है, जिसका मेन काम क्या है, टू जनरेट आउटपुट इमेज टू डिस्प्ले, टू जनरेट आउटपुट इमेजेस टू डिस्प्ले, जो हमारा आउटपुट इमेजेस को डिस्प्ले करने में मदद करता है हमारा, दैट इज कॉल्ड वीडियो कार्ड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक कहता है कि वीडियो कार्ड इज द कंपोनेंट, पीसी कंपोनेंट यूज्ड टू इनहेंस, प्लीज मेक अ नोट फॉर दिस, इनहेंस द क्वालिटी ऑफ इमेज। सो the main objective of using video card is to enhance the quality of image। जो चीज को हम दिखाना चाहते हैं अपने आउटपुट डिवाइस के थ्रू, यानी कि हम एक वीडियो को दिखाना चाहते हैं अपने आउटपुट डिवाइस के थ्रू, तो उस वीडियो की क्वालिटी को हम क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वीडियो कार्ड। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, video card is attached to the motherboard and calculate the image appearance on the screen। यानी कि क्या होता है, मदरबोर्ड के साथ वो अटैच्ड होता है और इमेज को अपेयरेंस करवाना है या करना है, उसकी रिजोल्यूशन को वो क्या करता है, मैच करता है विद द आउटपुट डिवाइस रिजोल्यूशन। ठीक है। सो वीडियो कार्ड इज एन intermediate device that accelerate the video through output। क्या करता है, accelerate। It's an intermediate device between the output device and the processor। So video card is the intermediate device between the output device and the processor, which is used to accelerate the video for throughput। वीडियो कार्ड इज एन, दो तरह का होता है। वीडियो कार्ड इज एन एक्सपेंशन कार्ड दैट कनेक्ट टू द कंप्यूटर मेमोरी। इट्स एक्सपेंशन, दैट मीन्स एक्सटर्नल। सो वीडियो कार्ड हैविंग all this, by all this name we are able to call the video card। So video card is having other name called graphics card, video adapter, display cards, graphic adapter and graphic accelerator। So these are the name of the video card। I hope it is easy to understand for you। So video card का हम लोग बहुत से नाम से जाना जाता है। ग्राफिक कार्ड्स भी बोलते हैं हम लोग उसको, वीडियो एडाप्टर भी बोलते हैं, डिस्प्ले कार्ड्स भी बोलते हैं, ग्राफिक एडाप्टर भी बोलते हैं, ग्राफिक एक्सेलरेटर भी उसको कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम आपको इस पिक्चर के अनुसार आपको दिखाने का हम कोशिश किए हैं। ये क्या हमारा वीडियो कार्ड हमारा है, जो इनबिल्ट में हमारा दिखाया गया है। लेट्स सी द नेक्स्ट, वीडियो कार्ड कंपोनेंट्स। वी हैव सम बेसिक कंपोनेंट ऑफ द वीडियो कार्ड। सो व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द वीडियो कार्ड? वी हैव 4 components of the video card। How these components helping? The main purpose to have using the concept of this component of a video card is, it is useful to utilize this component
the video card optimize the data from the processor to match the capabilities of the display. So this is the basic aim to use this components of a video card to what? To optimize the data from the processor to match the capabilities of the display. कहने का मतलब ये है कि एक कंपोनेंट, वीडियो कंपोनेंट्स का हम इस्तेमाल करके हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हम अपना जो वीडियो का जो उसकी क्या है उसको हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं, उसकी क्वालिटी को ऑप्टिमाइज करते हैं जो प्रोसेसर से मिलता है हमें, और उसको हम लोग किसके साथ मैच करते हैं किसके साथ? हमारा डिस्प्ले यूनिट के साथ। डिस्प्ले यूनिट हमारा जो भी हो, अगर हमारे पास मॉनिटर है तो मॉनिटर का अपना रिजोल्यूशन होती है, हमारा वीडियो का अपना रिजोल्यूशन होता है, तो दोनों को हम क्या करते हैं? मैच करके एक फाइनल सॉल्यूशन पर लेकर आते हैं, उसकी कैपेबिलिटी को हम लोग एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, मैच करते हैं, एंड फाइनली हम लोग डिस्प्ले करवाते हैं। So these basic 4 components we are using for that purpose. So first one is called GPU, that is called graphics processing unit. First one is GPU called graphics processing unit. Next we have video BIOS, then third we have video monitor, and the last we have VDI, that is DVI, sorry, digital visual interface. By this image also I want to show you all the 4. Here is DVI, here is VGA, here is GPU, here is video monitor memory. So see here is given, and video monitor memory. So by the help of this example I want to show you, by using this basic 4 components of the video we are able to be optimize our data which is coming from the processor to match the capability of the display. यानी कि जो प्रोसेसर से हमें डेटा आ रहा है, मिल रहा है, उस डेटा को हम ऑप्टिमाइज करते हैं और फिर हम लोग डिस्प्ले यूनिट के साथ उसको हम लोग मैच करवाते हैं, डिस्प्ले यूनिट का कैपेबिलिटी के साथ उसको हम लोग मैच करवाते हैं। एंड दिस आर द 4 बेसिक कंपोनेंट्स यूजिंग फॉर दैट पर्पस। आई होप नाउ इट्स क्लियर फॉर यू। नाउ टाइप्स ऑफ पोर्ट्स इन वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड में हमारा क्या क्या पोर्ट्स और टाइप्स ऑफ पोर्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। सो वी हैव अगेन 4 पोर्ट्स इन द वीडियो कार्ड। सो फर्स्ट वन इज सी हियर DVI, HDMI, देन हमारे पास क्या है S वीडियो एंड VGA। सो these are the 4 basic types of ports of a video card. We have to see one by one. Digital visual interface, that is called DVI, digital visual interface. So this is one of the interface to display video. It having a resolution as 2560 into 16. So this is the maximum resolution for the digital visual interface. This type of a video display interface mostly used for computer monitor and projector. That means इस तरह का जो इंटरफेस हमारा दिया रहता है उसमें हम लोग ज़्यादातर कंप्यूटर मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं या प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं। ये जो हमारा पोर्ट है जिसकी जो रिजोल्यूशन डिस्प्ले करवाने का है वो हमारा क्या है 2560 से इंटू 1600 तक का हम लोग रिजोल्यूशन वाले को हम लोग डिस्प्ले करवा पाते हैं। ठीक है, इसके अंदर में हमारे पास यानी कि DVI हम के 3 मतलब सिग्नल होते हैं। क्या है DVI1, DVI, DVI-A, DVI-D, DVI-I होता है हमारा। तो DVI-A दैट इज कॉल्ड एनालॉग, DVI-D दैट इज कॉल्ड डिजिटल एंड DVI-I दैट मीन्स डिजिटल एंड एनालॉग। सो इस फिगर के द्वारा हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल विजुअल इंटरफेस का
लुक होता है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं ये हमारा क्या है, DVI-A है, ये हमारा क्या है, DVI-D है, और ये हमारा क्या है, DVI-I है हमारा। फिर से मैं इस चीज़ को आप यहाँ पर ला कर मैं दिखा रहा हूँ आपको, यानी कि DVI-A ये हमारा हो गया, DVI-D ये हो गया, DVI-I ये हो गया हमारा। यानी कि डिजिटल विजुअल इंटरफेस A मीन्स एनालॉग, एक केबल यहाँ पर कनेक्ट होगी। DVI-D मीन्स डिजिटल विजुअल इंटरफेस डिजिटल मीन्स यहाँ पर कनेक्ट होगी। डिजिटल विजुअल इंटरफेस I जो होगा वहाँ पर जो दोनों है हमारा एनालॉग और डिजिटल, दोनों ही कनेक्शन यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। सो दिस इज द इमेज फॉर डिजिटल विजुअल इंटरफेस। सो डिजिटल विजुअल इंटरफेस हमारा एक वीडियो डिस्प्ले इंटरफेस है, जिसके द्वारा हम लोग वीडियो को डिस्प्ले करवाते हैं, जिसमें हम सबसे ज़्यादा कंप्यूटर मॉनिटर को और प्रोजेक्टर को उसके साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं, और उसकी जो रिजोल्यूशन जो होती है डिस्प्ले करवाने की 2560 से 1600 तक हम लोग उसका रिजोल्यूशन होता है। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ द digital visual interface. Now we have a HDMI. Nowadays this one is the common, HDMI is the common. Now all the computer is coming with HDMI, video display interface. It's coming with this HDMI. This is the latest one, and the full form of HDMI is high definition multimedia interface. So this type of a video display interface is used to transmit high quality and high bandwidth streams of audio and video between the device. यानी कि जिस इमेज की क्वालिटी बहुत हाई हो और जिस वीडियो की क्वालिटी बहुत हाई हो, उसको अगर हमें ट्रांसमिट करवाना है, then we are going to be use the HDMI. We are going to be use the HDMI. So इस टाइप का मोस्टली जो कनेक्शन जो होता है हमारा प्रोजेक्टर या मॉनिटर के साथ हमारा होता है. It's advanced now. It's a newly. Now every computer is coming with HDMI cable. Now S video, that is called super video. So S video is also called the super video. It is a video transmission format. It is used for mostly for the TV. मैं आपकी समझने के लिए एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ. अभी भी हम लोग जो हमारे पास डिश टीवी होते हैं, डिश टीवी से जो हमारा केबल जो आता है, ब्लैक केबल जो हमारा सेटअप बॉक्स में कनेक्ट होता है, उसमें जो हमारा जो कनेक्ट करते हैं उसका जो डिस्प्ले जो हमारा है इंटरफेस हमारा इसी टाइप का होता है. आई होप आपको याद आ गया होगा. सो इस तरह का ये हमारा सबसे पुराना टाइप है, जो ओल्डेस्ट मतलब कर सकते हैं. अभी ये हमारा बहुत कम आता है इस टाइप का हमारे पास इंटरफेस, लेकिन पहले हमारे लिए बहुत ही कॉमन था. इसकी जो रिजोल्यूशन जो होती है थोड़ा कम होता है. नेक्स्ट हमारे पास में है VGA केबल. स्टिल वी आर यूजिंग VGA केबल एंड VGA कनेक्टर, that is video graphics adapter or video graphics array, the full form. It is introduced by IBM in 1987. It having a resolution 640 to 480, इसका यही resolution होता है. And this type of a video display interface is able to display lower resolution and lower quality images or video on the screen. So इस इंटरफेस के द्वारा हम लोग जिसकी रेजोल्यूशन कम हो या किसी वीडियो या इमेज की क्वालिटी या रिजोल्यूशन उसकी कम हो, तो उसको हम लोग स्क्रीन पर अच्छे से दिखा सकते हैं. तो ये हमारा VGA है. आई होप इट इज simple and it is easy to understand for you. Now we have
types of graphics card. That means types of video card. We have a 4 types of video card. So we have to see one by one. Integrated video card. Integrated video card is such a video card which is inbuilt with the motherboard, जो motherboard के साथ built होकर आता है. Integrated जो video card is using the RAM which is coming with the computer itself, यानी that means कंप्यूटर रैम को ही वो इस्तेमाल करते हैं, वो अपना उसके पास कोई अपना रैम नहीं होता है. दूसरी बात यह इंटीग्रेटेड वीडियो कार्ड का वो लेस पावरफुल होता है लेकिन वो सस्ता भी होता है. दैट कैन एवरेज पीपल विल बी यूज फॉर दैट. सो इंटीग्रेटेड मीन्स विच इज कमिंग विद द मदरबोर्ड, जो मदरबोर्ड के साथ, यानी कि इंटीग्रेटेड का वीडियो कार्ड आर बिल्ट इनटू द मदरबोर्ड. और ये जो इंटीग्रेटेड जो वीडियो कार्ड होते हैं यूजिंग द कंप्यूटर मेमोरीज रैम, उसका कोई अपना रैम नहीं होता है. कंप्यूटर का मेमोरी, जो कंप्यूटर रैम सिस्टम का जो रैम होता है उसी को इस्तेमाल करता है. इंटीग्रेटेड कार्ड जो होते हैं लेस पावरफुल देन द डेडिकेटेड कार्ड. इंटीग्रेटेड कार्ड इज मोर एडुक्वेट फॉर एवरेज यूजर. इट इज सफिशिएंट फॉर द एवरेज यूजर. पीसीआई क्या होता है? पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है वो हम लोग पहले देख लेंगे. पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट. पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट. तो पीसीआई जो हमारा अभी आउट ऑफ डेटेड है, हम लोग ज़्यादा इसको अभी इस्तेमाल नहीं करते हैं. वो हमारा मदरबोर्ड के साथ में ही आता था, बिल्ट इन मदरबोर्ड, लेकिन अभी हमारे ये नहीं आते हैं इस टाइप का. और ये हम जो कहते हैं कि PCI इज रिप्लेस्ड बाय द PCI एक्सप्रेस, यानी कि PCI को PCI एक्सप्रेस के द्वारा उसको रिप्लेस कर दिया गया फ्रॉम 2005 ऑनवर्ड्स. यानी कि अब PCI नहीं आते हैं, अब PCI एक्सप्रेस होते हैं उसके जगह पर. सो ये इसमें समझना है कि पहले सबसे पहले PCI आया. PCI मदरबोर्ड के साथ में होते हैं लगे हुए, और वो अभी मतलब अब आना ऐसा बंद हो गया. अब इसका कोई मतलब इस टाइप का कोई वीडियो कार्ड नहीं होता. PCI वीडियो कार्ड कोई नहीं होता, अब खत्म हो चुका है. वो 1990 में ही रिप्लेस कर दिया गया बाय ISA. और अभी हम लोग 2005 से हमारा क्या है, हमारा PCI एक्सप्रेस उसके जगह पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं. सो PCI, द फुल फॉर्म ऑफ PCI इज peripheral component interconnected. Now we have AGP. So AGP is similar to the PCI, but AGP having speed up to 8x, यानी कि रिजोल्यूशन स्पीड जो होती है 8x तक होती है. ये ब्राउन इन कलर होता है. और अभी इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो AGP 2.0 हम लोग इस्तेमाल करते हैं और AGP 3.0 हम लोग इस्तेमाल करते हैं. ये भी हमारा मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होते, इनबिल्ट होते हैं. एंड द लास्ट वी हैव PCI एक्सप्रेस. एज आई टोल्ड यू, PCI एक्सप्रेस is the new and advanced type of video card. Everyone is using this one, and it having a capacity to accelerate 16x up to the 16x. और अभी हमारा सभी लोग इसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं. सो these are the 4 basic types of video cards. I hope it is clear for you. अभी हम लोग इसका डेफिनेशन दोनों का डिफ्रेंशिएट हम लोग कर दे रहे हैं. यहाँ पर जो हमने बताया इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड और इंटीग्रेटेड, हमने 2 वर्ड को यहाँ पर इस्तेमाल किया, डेडिकेटेड और इंटीग्रेटेड. डेडिकेटेड मीन्स एक्सटर्नल और इंटीग्रेटेड मीन्स
इंटरनल। सो हमारा ये दो तरह का जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उसके बारे में हम लोग एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। हम लोग जब डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो उसमें जो कहा जाता है कि ये हम डेडिकेटेड पार्ट है और ये हमारा इंटीग्रेटेड पार्ट है। तो डिस्क्रिप्शन डेडिकेटेड का ये होता है इज एन एक्सटर्नल अटैच दैट इज कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड। दैट मीन्स externally as per our requirement we are going to connect with the motherboard and we are using the video card. Integrated means it's internal attached with the motherboard, it's coming with the motherboard itself. नेक्स्ट पॉइंट इसका कहता है डेडिकेटेड को दूसरा नाम हमारा ये है डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड और इंटीग्रेटेड को हम लोग बोलते हैं ऑनबोर्ड, दैट इज इनबिल्ट हम लोग जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जीपीयू जिसको हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, दैट मीन्स रैम की बात हम लोग कर रहे हैं। यानी कि इंटीग्रेटेड का कोई रैम नहीं होता है, वो जो उसकी जो स्पीड होती है जो रैम जो होती है वो कंप्यूटर का रैम का ही इस्तेमाल कर लेता है वो इंटीग्रेटेड में। लेकिन अगर हम लोग डेडिकेटेड अगर हम लोग एक्सटर्नल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका अपना ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ता है जो उसका अपना रैम होती है, स्पीड होती है, प्रोसेसिंग यूनिट होती है। सो इट्स हैविंग ओन प्रोसेसिंग यूनिट जिसमें जीपीयू के अंदर में हमने देखा कि जीपीयू के अंदर में इसका अपना प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसमें नहीं होता है। रैम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका अपना रैम होता है, इसका रैम नहीं होता है, वो सिस्टम का रैम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम लोग पावर कंजम्पशन की बात करेंगे, पावर कौन ज़्यादा यूटिलाइज करता लेगा, देन डेफिनेटली डेडिकेटेड इज मोर और इंटीग्रेटेड इज लेस। तो ये ज़्यादा लेता है और ये कम पावर यूटिलाइज करता है। प्रोसेसिंग पावर की बात करेंगे तो डेडिकेटेड इज हैविंग मोर हायर प्रोसेसिंग पावर यूजुअली एंड इंटीग्रेटेड इज lower processing power. So these are the basic definition between the integrated and dedicated video card. I hope it is clear for you. So इस वीडियो लेक्चर में हमने आपके सामने वीडियो कार्ड और साउंड कार्ड के बारे में क्लियरली एक्सप्लेन किया है। हमने कितने तरह का साउंड कार्ड होता है, साउंड कार्ड का पोर्ट्स क्या होता है वो हमने बताया। फिर हमने वीडियो कार्ड का पोर्ट्स क्या होता है, वीडियो कार्ड का क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो हमने बताया। फिर वीडियो कार्ड कितने तरह के होते हैं वो हमने बताया। आई होप इट इज क्लियर। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, मैं आशा करता हूं। इसमें हम सारे पॉइंट्स को सिंपल वे में आपके लिए रखने का कोशिश किए हैं और सारा इमेज के थ्रू हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं। हर इमेज के द्वारा हम आपको एक मतलब उसका कैसा होता है वो मैं लुक देने का कोशिश यहां पर किए हैं आपके लिए। सो दैट इज ऑल अबाउट मल्टीमीडिया हार्डवेयर पार्ट में हमने दो चीज को आज कवर किया इस वीडियो लेक्चर में, साउंड कार्ड एंड वीडियो कार्ड। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग दूसरे डिवाइस को हम लोग देखेंगे एज पर द SBT सिलेबस। थैंक यू।